from moving. Frictional force can stop the things from moving. Is it true or false? Yes, it can stop. आपने पढ़ा है static friction. You studied about static friction. Static friction में क्या होता है? Static friction is a friction in which object is not able to move. Object cannot change its position. Am I clear? So this second statement is also true. Third is frictional force is a necessary evil. Is it true? ये तो सबको पता होगा, है ना? ये तो सबको पता होगा. So this is also true. Last option, friction increases speed of an object in air or water. Yes. Is this true or false? If it is false, then raise your hands. This is wrong statement because friction always decreases the speed. Friction always decreases the speed. It never increases the speed. Right? Chaliye. Should we move to the next question? See, if we apply oil on door, hinges, friction will. Yes, give me the answer fast. Fatafat, very simple question. The friction will increase, decrease, disappear altogether, remain unchanged. Yes, who will give me the answer? Yes, Janvi from section B. Yes? Ma'am, yes. This question का? Ma'am, B option decreases. ये सी तो नहीं बनेगा इसका आंसर. यस, ये सी आंसर नहीं हो सकता. डिसअपियर ऑल टुगेदर. बताइए किसको लग रहा है सी हो सकता है आंसर? फ्रिक्शन बेटा कभी डिसअपियर नहीं होती, वो हमेशा रिड्यूस हो सकती है टू अ मिनिमम. मैक्सिमम एक्सटेंट तक वो रिड्यूस हो सकती है, बट जीरो नहीं हो सकती. ठीक है? सो फ्रिक्शन will decrease, it will not disappear. ठीक है जी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. If a ball is rolling on a surface towards the east, then the direction of frictional force acting on section C, अनीश भाटिया. आइए जरा. हाँ जी, गिव मी द आंसर. Give me the answer. For next question, section D, Harpreet, get ready. Section Ma'am, west. हाँ जी. कैसे जा रहा है ये कि सबको क्लियर है? This is north, east, south, west. So, if the force is ball is rolling towards east, then the friction will act in the opposite direction, that is towards the west. Friction will apply in this direction. Good. Anyone having the doubt? See, chaliye next question. Assertion reason again. Distilled water conduct electricity. सेक्शन डी के स्टूडेंट्स मर्ज हैं क्या बीच में कहीं पर? सेक्शन डी स्टूडेंट्स कहीं पे मर्ज है तो हैंड्स रेज कीजिए जरा बच्चे एक बार. नो. ओके. सेक्शन ई में से कशिश. आइए जरा बच्चे. आफ्टर दैट सेक्शन ए में से दिलप्रीत. गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी बेटा. डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. इज इट ट्रू और फॉल्स? Yes. Are you giving the answer? Ma'am, true. True.
ओके, एंड रीजन भी बता दीजिए मुझे. Ma'am, reason is also true. Most liquids that conduct electricity are solutions of acid, bases and salt. Okay. चलो, go back to your seat. Yes, Dilpreet from section A. Dilpreet from section A. After that, from section G, Devansh. Absent. Devansh is absent. Dilpreet is absent. Dilpreet is absent. Okay. तो प्राची आ जाए सेक्शन ए से. आइए आइए जरा जल्दी से. आप तो बहुत दूर बैठे हो, आ जाओ जल्दी से. चलिए. हाँ जी बेटा, क्या ये ऑप्शंस ठीक बताई गई है? Assertion and reason are both true. Ma'am, yes. Okay. Beta, distilled water do not conduct electricity. Go back to your seat, बच्चे. Distilled water. If the water is with impurities or if it is a tap water, only then it can conduct electricity. Distilled water means it has purely water, no other ions are present. Distilled water actually do not contain any ion which can conduct electricity. Distilled water होता है जैसे आरओ का पानी हो गया, ठीक है, बिल्कुल प्योर पानी, उसमें सारे आयंस निकल जाते हैं, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम सब रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं. तो वो जो आरओ का पानी होगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा. एम आई क्लियर? डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट हैव आयंस. लिख लो बेटा इसको, ये क्वेश्चन लिख लो. डू नॉट हैव आयंस which can conduct electricity. ठीक है जी. ये बोर्ड विजिबल है आपको इजीली? ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा नहीं लग रही है? विजिबिलिटी है बोर्ड की? नहीं. Ma'am, no. क्लियर है? बोर्ड क्लियर नहीं है? Yes. Yes. ये लिख लो आंसर. डू नॉट डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट हैव आयंस. लिखो सर आंसर. डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट हैव आयंस which can conduct electricity. Done? इसका आंसर करके रखें जरा बेटा इसमें, तो ब्राइटनेस ठीक है. ठीक है बोर्ड? Yes. चलिए, लुक एट दिस क्वेश्चन. फ्रिक्शन. अच्छा, टैप वाटर का मैंने डिस्कस करना था अभी. टैप वाटर, कैन टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? Yes. जल्दी से बताइए. Yes. चलिए from section C.
हो बेटा जी क्लास में। अभी नजर आ रहा है, पहले भी आ रहा। यस युवराज सिंह। दो सेक्शन है, डी और एफ। नहीं, मैम यस टैप वाटर विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों करेगा बेटा? बिकॉज इट है फ्री आयंस। Because it has दो, हाँ बिल्कुल, free ions which can conduct electricity. Tap water contain impurities which have ions and thus contains thus conducts electricity. लिख लो आंसर जल्दी से। टैप वाटर contains some salt and impurities, some salts and impurities, and thus can conduct electricity. Thus can conduct electricity due to the presence of free ions. Due to the presence of free ions. Yes. Next question is बेटा सेक्शन डी एंड एफ कहीं मर्ज है किसी सेक्शन में? सेक्शन एफ के स्टूडेंट्स? Yes, they are merged. ओके ओके देन तो यस सेक्शन जी नितिन। सेक्शन जी नितिन, आइए बेटा एंड गिव मी द आंसर। Yes. फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड्स इज कॉल्ड एज? Fluid friction. Any other name which you can give to the fluid friction? Drag. Yes, it is called drag. Right? You can write the fluid friction also, but here when they are asking about a particular word, you will use the word drag. Right? Give me the answer of next question also, beta. Nitin, why heavy suitcases are provided with small wheels? आजकल देखे ना सूटकेस पे नीचे टायर्स लगे होते हैं, है ना? तो उसका क्या बेनिफिट होता है? रेज योर हैंड्स जिसको इसका आंसर आता है जरा। सेक्शन जी में से तो हैंड्स रेज हो रहे हैं। एंड व्हाट वुड सेक्शन ए बी सी डी एफ? ओके, सबको नहीं पता? इसका तो आंसर मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए था। 8B, जितने स्टूडेंट्स मुझे दिख पा रहे हैं उनमें से तो किसी का हैंड रेज नहीं है। सेक्शन बी आकाश, चलिए आइए जरा। इसके बाद सेक्शन बी से ही गुरसिमरन। हाँ जी बेटा आंसर बताइए जरा मुझे। Rolling frees friction so it becomes loosey to move heavy suitcase when it filled with wheels. फ्रिक्शन होगा, मेरे को आवाज क्लियर नहीं आई थी था। Rolling friction. गुड गुड गुड। यस 8C जो आगे एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया हुआ है सबसे आगे, हाँ जी यहीं से बोल दो। Heavy suitcases are provided with the small wheels because the small wheels convert the sliding friction into rolling friction, and we know that in rolling friction, the point of contact continues changes, which minimize the interaction between the two surfaces and reduce friction. एक्सीलेंट, एवरी पॉइंट इज कवर्ड इन दिस आंसर। ठीक है, दो चीजें हैं, अगर सूटकेस के नीचे व्हील नहीं होगी यू विल स्लाइड इट, एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर देन द रोलिंग फ्रिक्शन। टायर्स विल प्रोवाइड द रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है? स्मॉल सरफेस इज इन द कॉन्टैक्ट, ओनली स्मॉल सरफेस इज इन द कॉन्टैक्ट। फिर ये रोल करेगा, आगे जाएगा, ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, ये कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, ओनली स्मॉल पोर्शन इज इन द कॉन्टैक्ट विद द सरफेस।
so the friction will reduce. So in brief, you can write tires will provide the rolling friction. Tires will provide the rolling friction which is lesser than the sliding friction. Right? बहुत अच्छा सा आंसर दिया, वेरी गुड. चलिए, हो गया क्वेश्चन. सेक्शन सी वनीत. सेक्शन सी वनीत. चलिए, give me the answer of this question बेटा. What is the difference between electrolytes and non-electrolytes? Conduct electricity. Electrolytes क्या होते हैं? It conduct electricity. And non-electrolytes? Do not conduct electricity. And what will be the example? Example भी दे. Wood. Wood किस में आ गया? Wood. बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट हम सॉल्यूशंस की ही बात कर रहे हैं. कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड कुछ सॉल्यूशंस होते हैं which do not conduct electricity. जो wood है that comes in the category of insulators, not in the category of electrolytes or non-electrolytes. जब हम इलेक्ट्रोलाइट की और नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो हम यहाँ पे किसी लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं. ठीक है. सो वुड, प्लास्टिक, रबर, ये एग्जाम्पल आप नहीं दोगे बिकॉज दीज आर इंसुलेटर्स. ओके. सो गो बैक टू सीट. अगर एग्जाम्पल नहीं आती है तो एनीवन एल्स विद एग्जाम्पल. 8 जी. हाँ जी बेटा बताइए सर. आ जाओ, हैंड रेज कर रखे हैं काफी देर से. आइए. मैम इलेक्ट्रोलाइट टैप वाटर, नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिस्टिल्ड वाटर. टैप वाटर, वेरी गुड. अभी अभी आई दिमाग में? अभी अभी सोचा या पहले से पता था? पहले से बता रहा. और एग्जाम्पल टैप वाटर के अलावा आपने एक बहुत. हाँ जी बोलो सर. आप बोल दो साथ में हैंड रेज किया. Lemon juice. लेमन जूस. ओके. देखो इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एनी. अभी पीछे क्वेश्चन क्या था ना, इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एसिड, बेस और सॉल्ट. कुछ भी हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट. कोई भी एसिड ले लो, कोई भी बेस ले लो, कोई भी सॉल्ट ले लो, दे आर इलेक्ट्रोलाइट. तो लेमन जूस हो गया. ठीक है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया. आपने एक बहुत कॉमन एग्जांपल कर रखी है NaCl की. आप इस चैप्टर में बार बार पढ़ते हो Na+ Cl नेगेटिव पढ़ते हो ना. जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं दे ऑलवेज प्रोड्यूस कैटाइंस एंड एनाइंस. जो सब्सटेंस कैटाइन एंड एनाइन प्रोड्यूस कर सकता है उसी को हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं. ठीक है. इसकी एग्जांपल हमें मिली. नॉन इलेक्ट्रोलाइट की हमें क्या एग्जांपल मिली? डिस्टिल्ड वाटर. इट विल बी ओके. एनी अदर एग्जांपल? तो इसकी कैटेगरी में आप टैप वाटर लिख दो, NaCl लिख दो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख दो, लेमन जूस लिख दो. वेरी गुड. चलिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये लिखते जाओ बेटा. जिनको नहीं पता नोट करते जाओ. लेमन जूस लिख लीजिए. ठीक है. क्लियर है. सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी लिख सकते हो. सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होते हैं. ठीक है. सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया? एक बेस. इसका फॉर्मूला होता है NaOH. NaCl क्या है हमारा? सॉल्ट है. और लेमन जूस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये दोनों हमारे क्या है? ये दोनों क्या है हमारे? एसिड्स हैं. ठीक है जी. तो सॉल्ट, एसिड्स एंड बेस they will conduct electricity and they are called electrolytes. Am I clear to everyone? क्लियर है बेटा. नोट कर लो. छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चंस यहीं से घूम फिर कर बन जाएंगे. ठीक है. चलिए, एग्जाम्पल्स मिल गए. डिस्टिल्ड वाटर वन ऑफ द एग्जाम्पल. एनी अदर एग्जाम्पल विच यू कैन गिव?
Ma'am, sugar solution, Very good. Sugar solution. Any other example? kerosene, Kerosene. Okay. Oils basically, है ना? हम कोई भी ऑयल बोल सकते हैं. केरोसिन हो गया, ठीक है. अल्कोहल हो गया, कुछ भी. बहुत सारी नंबर ऑफ एग्जांपल्स वी हैव. लिस्ट लग जाएगी, इतनी सारी एग्जांपल्स हैं ऐसे लिक्विड सब्सटेंसेस की जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. क्लियर? शुड बी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर ये नोट डाउन हो गया है, वुड नहीं लोगे बेटा, वुड विल नॉट बी द राइट एग्जांपल. ठीक है जी. चलिए, ये नोट डाउन हो गया तो चलिए बेटा, रेज योर हैंड्स अगर नोट डाउन कर लिया तो. ये गुड. चलिए, it is observed that vehicles used in air and water transportation have different shapes as compared to those who run on land. लैंड पे जो व्हीकल रन करते हैं उनकी आगे से शेप कैसे होती है? इस तरीके से, मतलब कुछ भी है तो आगे से फ्लैट शेप ही रहेगी उनकी, है ना. और जस्ट एयर में और वाटर में मूव करते हैं उनकी शेप कैसी होती है? इस टाइप से, है ना. तो ये क्यों शेप्स में डिफरेंस है? Who will give me the answer? Raise your hands, otherwise I will take the names. I want the answer from 8th A or from 8th C. 8th C, Sakshi. और 8th A में से काजल. आ जाइए, दोनों ही आ जाइए. हाँ जी. What is the shape of vehicles which fly in air or run in water? उस पर्टिकुलर शेप को क्या बोला जाता है? ma'am, streamlined shape, Streamlined shape. Very good. And next part का आंसर बताइए मुझे. इस शेप को बोला जाता है स्ट्रीमलाइन शेप. सेकेंड पार्ट, व्हाई दीज व्हीकल्स हैव सच शेप, इसका भी आंसर दीजिए जरा. यस. and because they are narrow from the front, बिकॉज दे आर. narrow from the front, नहीं नहीं, नैरो क्यों है, यही तो क्वेश्चन है. ये शेप ऐसी क्यों है? because it reduces friction, तो एयर में भी फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा. एयर वाले जो एयर में ट्रेवल कर रहे हैं, हमारे कार हैं, बस हैं, उनकी शेप ऐसी क्यों नहीं होती? वहां पे भी रिड्यूस कर लेंगे फ्रिक्शन तो हम. ये पॉइंट ठीक है, टू रिड्यूस फ्रिक्शन. कैन यू कंप्लीट दिस पॉइंट? हु कैन कंप्लीट दिस? यस, काजल आइए जरा. गो बैक टू योर सीट बच्चे. हाँ जी, कैन यू गिव मी द कंप्लीट आंसर? ma'am, due to less friction, Less friction of what? ma'am, object, ऑब्जेक्ट तो फ्रिक्शन लगा ही नहीं रहा. लगाएगा भी तो इतना कम है कि उसका फ्रिक्शन इग्नोरेबल हो जाएगा. यस, हु कैन गिव मी द आंसर बच्चे? यस, 8 थी, 8 थी. नवकरण. Yes, दिस पार्ट. these vehicles have such shape to reduce the drag in the air or water. तो एयर में, सॉरी, हाँ, तो ये जो एयर एंड वाटर होते हैं ना, जब ये व्हीकल्स चलते हैं, चलो गो बैक टू सीट बेटा. वाटर का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एयर से ज्यादा होता है. ठीक है, तो वाटर में इसलिए ज्यादा जरूरी है. एंड जो एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं वो जब एयर में ट्रेवल करते हैं, दे आर ट्रेवलिंग विद अ वेरी हाई स्पीड. तो आपको पता है स्पीड इंक्रीज होने से फ्रिक्शन इंक्रीज होती है या रिड्यूस होती है? बताओ. अगर आप साइकिल चला रहे हो, स्लो चला रहे हो, तब आपके फेस पे ज्यादा हवा लगेगी, या आप साइकिल तेज चला रहे हो तब आपके फेस पे ज्यादा हवा लगेगी? चलो, साइकिल काफी बच्चे चलाते हैं, इसका मतलब हैंड रेज हो गए अब तो. हाँ जी, 8 थी में से दो
आ जाए कोई आंसर देने के लिए? मैम अगर मैम स्पीड इंक्रीज होती है तो मैम फ्रिक्शन भी मैम इंक्रीज होगी। देखो दो तरीके से, यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात नहीं कर रही हूं मैं, जो फ्रिक्शन एयर और वाटर के कारण आ रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। हाँ जी बेटा 8G, आंसर बताओ जरा। And drag depends upon the speed of the object and its shape also. दैट इज व्हाट आई वांट टू से, ड्रैग डिपेंड अपॉन द स्पीड। ठीक है, अगर मोर स्पीड होगी तो ड्रैगिंग फोर्स ज्यादा हो जाएगा। इज दिस क्लियर? समझ आया? स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन वगैरह के केस में ये कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाता है, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। हम सिर्फ ये देखेंगे कि ये शेप इसलिए होती है क्योंकि एयर एंड वाटर में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसको रिड्यूस करने के लिए ये स्ट्रीमलाइन शेप बनाई जाती है। इज दिस क्लियर? चलिए, should we move to the next question? Third part, write two ways to reduce friction of rough surface. ये तो आता होगा। हाँ जी, two ways to reduce friction of rough surface. एक ही हैंड रेज हो रहा है बार बार। बाकी बच्चे ये सेट थे जो फर्स्ट बेंच पे टू गर्ल्स बैठी है, बेटा आंसर दो जरा मुझे, आइए जरा। By polishing, by lubrication, by streamlining shape. बस बहुत है, ऑयलिंग कर दो, लुब्रिकेट कर दो, बॉल बियरिंग कर दो, देयर आर नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, चलिए, should we move to the next? Give differences between static rolling and sliding friction. Give examples also. हाँ जी, static friction. What is a static friction? In static friction, object is at rest or is in the motion. 8C. हाँ जी 8C, हर्षवीर, हर्षवीर कौर। एंड 8 है नमनप्रीत कौर। Ma'am, in static friction, object is at rest. Rest, very good. In this case, the object, we are applying the force. जैसे ये बड़ा सारा एक बॉक्स है, we are applying the force, but this object due to friction is not moving. ठीक है, it is not moving. At that time, the frictional force is called static friction. ठीक है, आपके घर में बड़ा सा टेबल है, यहाँ पे बेंचेस डेस्क पड़े, हैवी वाले पड़े हैं, आप फोर्स लगा रहे हो बट वो हिल नहीं रहा है, वो फोर्स, वो उस वक्त जो फ्रिक्शन है, दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन। इज दिस क्लियर? रोलिंग आई थिंक सबको क्लियर है। रोलिंग फ्रिक्शन क्या चीज होती है? यस, फ्रिक्शन ड्यू टू रोलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट रोल करेगा, ठीक है उस वक्त। हाँ जी चलो 8G आप ही बता दो बेटा, सबसे ज्यादा हैंड्स आपकी रेज हो रहे हैं। In rolling friction, the frictional force which is exerted between two contact surfaces when one body rolls over the another. ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन, देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग में क्या होगा? ऑब्जेक्ट स्लाइड, हाँ जी ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ऑन द अदर सरफेस, एक और सरफेस और है, इन दोनों के बीच में कुछ फ्रिक्शन, वी आर स्लाइडिंग इट, खींच रहे हैं। ठीक है, उस वक्त जो फ्रिक्शन है दैट इज कॉल्ड द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो मुझे ये बताइए, आउट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन विच फ्रिक्शन विल बी मोर? एनीवन एल्स? 8 थी, बड़े हैंड्स रेज हुए हैं, आ जाओ फटाफट से, कोई सेकंड बेंच पे जो स्टूडेंट बैठे आ जाओ बेटा। Sliding friction is higher than the rolling friction. सर ये मोर होगा किसका? रीजन भी बता जाओ, गो बैक टू योर सीट। Because in sliding friction, ma'am, the area of contact is more, and in the rolling friction, ma'am, area of contact is the less. Here the area of contact is only this much, and in this case this whole one is the area of contact. So more the area of the contact, more will be the friction, right? ये सब कर रखा होगा नोट्स वगैरह में, लिखा हुआ है ना, मुझे लिखवाने की नीड है तो बता दीजिए, लिखा हुआ है ना?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फ्रिक्शन इज एडवांटेजियस, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल. इज द फ्रिक्शन एडवांटेजियस? 8G में से नहीं मैंने पूछा. आपके हाथ दुखने लग जाएंगे, नीचे कर लो. चलो 8D, लवप्रीत. कहाँ बैठा है ये बच्चा? लवप्रीत, अनामिका. Yes. लवप्रीत हैज कम. ओके, चलिए बताइए जरा बेटा आंसर. हाउ फ्रिक्शन इज एडवांटेजियस? It help us to walk. ओके, एग्जाम्पल हो गई ना. चलो ये भी ठीक है, वॉक में हेल्प करता है. एनी अदर एग्जाम्पल? It help us to write. हेल्प करते हैं. अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होंगे तो यू आर नॉट एबल टू राइट. जैसे मेरे पास ये पेन है ना, ये बहुत स्मूथ है, ये इसको मतलब गिर जाता है ये बहुत बार. क्यों? क्योंकि मेरे फिंगर में उस पेन में बहुत कम फ्रिक्शन, तो मुझे इसको टाइटली होल्ड करना पड़ रहा है. ठीक है, समझ आया? आपको अपने पेन को बहुत ज्यादा टाइटली होल्ड करना पड़ता है क्योंकि उसके ऊपर ग्रिप बनी होती है, या रबर लगा हुआ होगा, या फिर लाइंस बनी हुई होंगी, जिसके कारण फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा और आप इजीली पेन को होल्ड कर पाओगे. ठीक है, तो वो फ्रिक्शन के कारण ही आप लिख पाते हो. इज दिस क्लियर? चलिए, ये आई थिंक क्लियर है सबको. क्वेश्चन किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए. गो बैक टू योर सीट बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट वेरियस प्रिकॉशंस यू विल टेक to save yourself from lightning strike during thunderstorm. हाँ जी, सिंपल से क्वेश्चन है ये वाले. हाँ जी, ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म आप अपने आप को कैसे बचाओगे? बताओ. फिर से वही हैंड्स रेस. चलिए, 8th है युवराज. 8th है युवराज. हाँ जी बेटा, बताइए जरा. Take and shelter indoor. जी, सबसे पहली बात तो आप इंडोर हो जाओ, घर के अंदर चले जाओ. ठीक है, और बोलो. घर में जाके सो जाओ. ठीक है, थंडरस्टॉर्म रुकेगा फिर उठ जाना. ठीक है, और बताओ. ठीक है, ये पॉइंट ठीक है. ट्राई तो करो एक आधा और बोलने का. चैप्टर पढ़ा हुआ है, याद करो जरा. सिंपल सिंपल से पॉइंट्स है. अगर लाइटनिंग हो रही है, थंडरस्टॉर्म है, तो आपने सब नॉर्मली देखा होगा पावर कट हो जाता है. हो जाता है ना. तूफान आया, लाइटनिंग हुई, बिजली चमक रही है तो लाइट चली जाती है. पावर कट क्यों हुआ? वो इसी रीजन से. वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होके करंट वायरिंग में आ जाएगा सारा. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को ज्यादातर अवॉइड किया जाता है ऑन करना. प्लगिंग वगैरह बोल दी जाती है कि निकाल दो इनको, तो इसीलिए पीछे से पावर कट ऑफ कर देते हैं. तो सभी तो कर नहीं पाएंगे ये चीज. हाँ जी बेटा 8G, आपका तो हाथ दुखने लग जाएगा. बोलो जरा जल्दी से आंसर. बोल दो बोल दो. And do not run across a large field or open area. If we cannot find a safe place, then squat down in the low-lying areas also. एक सबसे मेन पॉइंट और है बेटा, कौन बताएगा? Do not try to shelter under a tree. And do not try to take shelter under a tree also. हाँ जी, ठीक है. ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है. किसी भी टॉल ट्री के, अगर बहुत सारे ट्रीज हैं तो एक शॉर्ट ट्री के नीचे शेल्टर लेना सेफ है रादर देन टेकिंग अ शेल्टर अंडर अ टॉल ट्री. ठीक है बच्चे, टॉल ट्री के ऊपर लाइटनिंग इफेक्ट जल्दी आएगा. अच्छा, ट्री तो वैसे वुड हो गया, वो तो नॉन कंडक्टिंग है, तो उससे आपको
डेंजरस, मतलब वो आपके लिए डेंजरस क्यों है? बताओ, फिर से वही। कौन बताएगा? वुड का है ना, ट्री तो वुड है, वुड तो वुड तो इंसुलेटर है, वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करता, लाइटनिंग कंडक्ट नहीं करता। देन हम क्यों मना कर रहे हैं कि शेल्टर नहीं लेना चाहिए ट्री के अंदर? अंदर नहीं, अंडर। ठीक है, बताइए जरा, हु कैन ट्राई? Because the shape of tree is pointed, so there are more chances that lightning falls on it, and it causes great harm to our body. वो तो पॉइंटेड ट्रीज का हो गया। मैंने क्वेश्चन पूछा कि जो ट्री है वो क्या है? ये पॉइंटेड ट्री नहीं है, इसके नीचे भी आपको शेल्टर नहीं लेना चाहिए। क्यों? एक छोटा ट्री है उसके नीचे ले लो, इसके नीचे क्यों नहीं लेना? हाँ जी बेटा बोलो। Ma'am, because trees are projecting object, these are the primary targets of the lightning. हाँ ये भी ठीक है, मतलब देखो बारिश आने से पेड़ भी तो गीले हो गए। And they are closest to the clouds also. पेड़ गीले हो गए हैं, बैठ जाओ, गीले हो गए। वाटर हमने पढ़ा कि जो रेन वाटर है, टैप वाटर है, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट? तो इसलिए टॉल ट्री के नीचे साथ में शेल्टर नहीं लेना चाहिए। इसलिए जो पेड़ है उस वक्त वो कंडक्टिंग हो जाते हैं जब वो वेट हो जाते हैं। ठीक है, पॉइंटेड ट्री वाला भी आंसर ठीक था अगर वो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। गुड, चलिए आगे देखो। What kind of charge is produced in silk cloth and glass rod when the two are rubbed? Yes, जल्दी से। अच्छा जल्दी से मुझे बस ये बताओ, दोनों में से हार्ड कौन सी चीज है, ग्लास रोड या सिल्क? जल्दी, टाइम थोड़ा बेटा हमारे पास। सिल्क क्लॉथ और ग्लास रोड में से हार्ड कौन सा है? ऑब्वियसली कौन सा हार्ड है? ग्लास रोड। तो जो भी दो चीजें जब रब की जाती है, मैं आपको एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट बता रही हूँ आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको ध्यान से सुनो। When two things are rubbed, in which one is harder will always gain positive charge and the second one will gain the negative charge. ठीक है, जो भी हार्ड होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड जो स्मूथ होगा, सॉफ्ट होगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर है बेटा? तो डू नॉट क्रैम, क्योंकि ये कंफ्यूजन बहुत बच्चों को होती है, कितने याद करें हम। जैसे मैंने कॉम को रब किया हेयर्स के ऊपर, तो कॉम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? among comb and hairs, which one is harder? Excuse me, ma'am. बेटा बोलिए। Ma'am, but when ebonite rod is rubbed with wool, it acquires negative charge, whereas it is harder. एक्सेप्शंस होती है, कुछ एक्सेप्शंस आर देयर। कुछ एक्सेप्शंस को लर्न करना इजी है एज कंपेयर टू लर्न ऑल द थिंग्स। ठीक है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। अभी कॉम्ब वाला और हेयर वाला मैं एग्जांपल दे रही हूँ। कॉम्ब विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड हेयर्स विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज। ऐसे उस रब्ड कॉम्ब को हमने पेपर्स के पास लेकर आया, तो कॉम्ब पे पॉजिटिव चार्ज है, पेपर विल एक्वायर द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, समझ आई ये चीज? चलिए, एक तो एक्सेप्शंस होती है बेटा हर केस में, तो वहां पे फिर थोड़ा सा हमें रहना पड़ता है एक्टिव। ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, आई थिंक ये तो पूरा एक क्वेश्चन है। किसी को कोई डाउट है तो कुछ पूछ सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये तो पूरा डिटेल्ड क्वेश्चन पर कर लेना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट है तो बता दो मुझे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन इलेक्ट्रोलिसिस एंड गिव टू यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस? कौन बताएगा? मैम टाइम इज ओवर। ये समझ आ गया बेटा सबको? मैम टाइम इज ओवर। बेटा ओके आई लिसन। ठीक है, चलिए ये जितना आज किया हम सबको क्लियर हो गया टॉपिक, जितना भी हमने किया है। Ma'am, yes. In the next class I will ask you the question from this topic. Ma'am, okay. Okay, bye everyone. Thank you so much, teachers.